Yes, students, so we have discussed in this topic air about the composition of air. Okay, that what are the various gases are there in atmosphere, which gas is most important, okay, such as oxygen is also important, and what are the role of balance of these gases. There is proper balance of these gases, proper percentage of all these gases in the atmosphere, okay, and the proper balance is maintained by the nature, but this balance is disturbed due to human activities, and which is increasing due to the human activities, pollution, and then carbon dioxide gas, and the greenhouse effect is there, and global warming. Okay, so this all we discussed about in composition of air. So now next we are going to discuss about the structure of atmosphere. Structure means how it is formed. Structure of atmosphere. So this is our earth that we have discussed, okay, and our earth is surrounded by a blanket of air that is called atmosphere, and this atmosphere has some structure. Okay, there are various layers of atmosphere, such as first layer, then second layer, okay, then third layer, then fourth layer. ठीक है, so this is are the blanket, ये पूरा blanket है, ठीक है. तो इसी लेयर के पोर्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, डिफरेंट लेयर्स, ठीक है. ये डिफरेंट लेयर्स मतलब ये जो हमारी अर्थ की सराउंडिंग है, तो हमने इतना सा पोर्शन उठा लिया और हम इसको अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस लेयर्स. सो फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब ये जो लेयर्स हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक, ठीक है. यस, yes, we are going to discuss all the layers, ठीक है. फर्स्ट जैसे our atmosphere is divided into 5 layers, ठीक है. फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर. ये फर्स्ट लेयर जो है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, ठीक है. and it is at 10 to 13 किलोमीटर, ठीक है. सपोज दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. उसके बाद हम ये पूरा 500 तक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं बनाएंगे हम इसको ही 500 तक कर लेते हैं. यहाँ से हमने 100 तक कि हम अपनी जो ड्राइंग है वो थोड़ी इजी बना सकें, ठीक है. सो फर्स्ट द लेयर इज एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर बिकॉज we breathe in this layer, ठीक है. मतलब from earth to 10 kilometers above in the surface there is troposphere, as there is diagram in your book and you can see the Mount Everest also here, कि this troposphere is near to the Mount Everest peak, ठीक है. So this troposphere is very important layer. Its height is average height is 13, ठीक है. जैसे 10 to 13 होती है, इक्वेटर के पास ये 13 होती है और पोलर रीजन में ये 10 होती है, तो 10 to 13 एवरेज हम ले लेते हैं, ठीक है. Then the air we breathe that exists in this troposphere only, इसी troposphere में ही है. And almost all the weather phenomena, ठीक है, हम ब्रीदिंग भी किसमें करते हैं, इसी लेयर में. जो वेदर फिनोमिना है, वेदर फिनोमिना जैसे एयर, रेन, हेल स्टॉर्म, ठीक है, हेल्स जो गिरते हैं, स्टॉर्म हो गया, रेनफॉल हो गया, सब कुछ कहाँ होता है, ओनली हियर. वेदर फिनोमिना जो भी वेदर से रिलेटेड हमारे हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, चाहे हम रेनफॉल है, फॉग है या हेल स्टॉर्म है, ठीक है. हेल स्टॉर्म जैसे अगर वो बारिश में कई बार बर्फ के पीसेस भी गिरते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उनको, ओले गड़े, है ना, तो वो हेल स्टॉर्म, तो वो भी इसी लेयर में ही होते हैं, वो सारे इससे ऊपर वाली लेयर्स में नहीं है, इन दिस लेयर ओनली, ठीक है. एंड सो दिस इज द फर्स्ट लेयर. क्लियर टू एवरीवन? यस. सो ऑल द वेदर फिनोमिना, ब्रीदिंग भी इसी में है, क्लाउड्स भी इसी में. वेदर क्लाउड्स कहाँ फॉर्म होते हैं, रेनफॉल कहाँ होती है, क्लाउड से, तो वो क्लाउड्स भी इसी लेयर में ही है, ठीक है.
Yes, so first layer of the atmosphere is troposphere. It is most important layer of our atmosphere. We breathe in this layer, and this layer is also related to various weather phenomena. Yes, okay, madam. Yes, so now next second layer, it is stratosphere. Second layer is stratosphere. Stratosphere is from 10 to 50 kilometer. 20, 30, 40, 50. यहाँ पे ठीक है? Till here. It is stratosphere. Yeah. So 10 to 50 kilometer there is stratosphere. और जहाँ पे ये डिवाइड कर रही है this line is called tropopause. यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर कंप्लीट हो गई है, ट्रोपोपॉज एंड देन स्ट्रेटोस्फेयर लेयर हैज बीन स्टार्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे इस लेयर का क्या नाम है? यहाँ पे ट्रोपोपॉज. ठीक है, फिर दिस इज द सेकेंड लेयर, इंपॉर्टेंट लेयर, एंड इट ऑल्सो एक्सटेंड टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स. ठीक है, ये सारे किलोमीटर्स में है. And then this layer is free from clouds. यहाँ पे कोई clouds नहीं है. This layer is free from cloud and associated weather phenomena making conditions. जो weather phenomena हमने कहा, तो यहाँ पे वो कोई conditions नहीं है. ठीक है, weather conditions नहीं है. So that is why aeroplane जो है वो इस लेयर में बड़ी आराम से फ्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो एरोप्लेन, क्योंकि अगर क्लाउड्स होंगे, रेनफॉल होगी, तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज आइडियल फॉर एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन. एंड वन अदर इंपॉर्टेंट फीचर कि दैट इट आल्सो कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन. ओजोन जो लेयर है वो भी इसी स्ट्रेटोस्फीयर में हमें मिलती है. दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. व्हाट आर हार्मफुल रेज ऑफ द सन? ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज. So this layer contains the ozone which saves us from the harmful rays of the sun. Then next come the mesosphere. So this mesosphere is up to 80 kilometers. ठीक है, 80 kilometers में next क्या है? Mesosphere. So यहाँ पे हमने कहा था ट्रोपोपोज था, तो यहाँ पे स्ट्रेटोपोज हो गया. स्ट्रेटोपोज हो गया, then next mesosphere has been started. यहाँ पे मेसोपोज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट थर्मोस्फेयर विल बी स्टार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही लिख दिया अभी, ट्रोपोपोज, where the troposphere we can say there is, it discriminates or it separates. ये ट्रोपोपोज सेपरेट कर रही है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को. ठीक है, then mesosphere, so this is from 50 to 80 किलोमीटर. ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर तक है. This is the third layer of atmosphere, 1 to 3rd layer होगी. ठीक है, and it lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometers. And meteorites, जो meteorites क्या होते हैं? Very large pieces of rocks or debris that comes from the space into our atmosphere of our Earth. That burns in this layer. वो इस लेयर में क्या हो जाते हैं? अपने आप burn हो जाते हैं. ठीक है, so they get burned in this layer which were entering from the space. जो space से enter करते हैं. ठीक है, कई बार हमें लाइट में कहते हैं कि टूटता तारा हुआ दिखा, है ना, तो what maybe that meteorites get burned. ठीक है, then the thermosphere. So next comes the thermosphere. The thermosphere, it extends up to the height of from 80 kilometer to 400 kilometer. मतलब 80 से लेके हम यहाँ पे सारे गैप डाल दिया, तो 400 किलोमीटर तक हमारा क्या हो गया? Thermosphere. And what is important about this layer? In this layer, temperature rises very rapidly as we go with the height. अदरवाइज क्या होता है कि जैसे हम ऊपर जाते हैं, वी गो अपवर्ड्स, द टेम्परेचर इज, अगर जैसे हम ऊपर, टेम्परेचर क्या होता है? इफ वी गो अबव, जैसे हम माउंटेन एवरेस्ट पे जा रहे हैं, तो एवरेस्ट पे टेम्परेचर कैसा होगा? इट विल बी लो, है ना.
कम होगा ना टेम्परेचर। तो जैसे व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टुडे अप्रोक्सीमेटली, टुडेज टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जो ऑनलाइन बैठे वो तो नेट से सर्च करके बता देंगे व्हाट इज टेम्परेचर टुडे, है ना। अभी 33 डिग्री सेल्सियस हो गया सपोज। अगर विंटर की हम बात करें तो विंटर में कितना होगा, मे बी 10, है ना। तो इट मीन्स कि समर में ज्यादा होता है। इफ देयर इज हॉट टेम्परेचर विल बी मोर, इफ देयर इज कोल्ड देन टेम्परेचर विल बी लेस। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कोल्ड वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस। अगर जैसे हमने ऊपर गए टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और यहाँ पे थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर क्या हो रहा है, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इंक्रीज हो रहा है। अगर हम यहाँ से जैसे जैसे और ऊपर जाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर यहाँ पे पहले जैसे हम ऊपर गए डिक्रीज हुआ, फिर नेक्स्ट लेयर में ऐसा होता है कि जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इस लेयर में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर फिर थोड़ा और डिक्रीज होता है, लेकिन थर्मोस्फेयर में फिर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। सो दिस इन दिस लेयर टेम्परेचर जो है इट राइजेस वेरी रैपिडली व्हेन वी गो अपवर्ड्स एंड लोनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। Here is also ionosphere and there are radioactive waves in this thermosphere. This layer helps in radio transmission, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियो वेव्स होती हैं बहुत रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं। तो रेडियो ट्रांसमिशन मींस जो भी हमने सैटेलाइट्स वगैरह सेंड की होती हैं फॉर आवर नेटवर्क, ठीक है, इंटरनेट जो भी हमारी प्रॉपर हमें मिल रहा है, सो दैट ऑल रेडियो एक्टिव वेव्स दे reflect back from this layer only, ठीक है। This layer helps in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth, जो यहाँ अर्थ से गई तो बैक कहाँ से आती हैं, इसी लेयर से, ठीक है। Radio waves transmitted from the earth, they are reflected back to earth by this layer, and then the last layer is exosphere, and this layer starts from 400 kilometer. ठीक है, this layer starts from 400 kilometer and where it ends, no end, because it then meets into the space. ठीक है, so the uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. It is very thin layer. Light gases like helium, hydrogen float into the this sphere. ठीक है, तो सबसे लाइट गैसेस होती है हीलियम और हाइड्रोजन, तो वो यहीं पे होती हैं, ठीक है, मेनली these gases. So this is the structure of atmosphere. Clear now? Structure of atmosphere. 5 layers. So up to 10 kilometer there is troposphere. Then up to 50 kilometer there is stratosphere. Up to 80 kilometer, from 50 to 80 there is mesosphere. What is important about stratosphere? Ideal. They are ideal for aeroplane. Why they are ideal for aeroplane flying? Why they are ideal? Because, yes, because this layer is free from clouds. No, there is no weather phenomena occurs in this layer. So this layer becomes the ideal for aeroplane flying of aeroplane. And then second importance of this layer, ozone. Presence of ozone gas, which protect us from harmful rays of the sun. ठीक है, then comes the mesosphere. What is important about this layer? What is important about this layer? Meteorites get burned in this layer. Anji Bhavya, are you having any doubt? Yes, मैम। मैम मैंने पूछना था कि जो ट्रोपोपॉज और मैम स्ट्रेटोपॉज है, मैम ये क्या है? Tropopause, this is the layer troposphere. So यहाँ से ट्रोपोस्फेयर इट इज फिनिशेस एंड देन स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट्स। तो जो लाइन जहां से ये फिनिश हुई और नेक्स्ट स्टार्ट हुई, तो ये लाइन हमारी क्या है, ट्रोपोपॉज, ठीक है। कि हियर द ट्रोपोस्फेयर हैज एंडेड एंड नाउ स्ट्रेटोस्फेयर हैज बीन स्टार्टेड। सो दिस सेपरेट्स ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर। सेम हियर स्ट्रेटोपॉज एंड देन थर्मोपॉज, ठीक है, क्लियर? ओके हाँ जी,
It is also good. Very good. So this is the structure of atmosphere. So now comes the next weather phenomena. So now, as we have discussed that all the weather phenomena, weather phenomena, where it happens, all weather phenomena happens in troposphere only. And what is this weather? Weather क्या है? What is weather? हम कह रहे हैं ना कि जो भी weather phenomena है वो कहाँ पे है? इसी लेयर में है, troposphere में. So what is weather? Sometimes कहते हैं कि today's weather is very fine, today's weather is very hot. ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि you should visit mountainous area, the climate is very good there, है ना? Yes, so maybe you have read earlier. So we are going to discuss weather and climate. Weather and climate both are related to our atmosphere. Weather भी और climate भी दोनों ही हमारे atmosphere से related. ठीक है, weather क्या है? जैसे आप today's news पे yes इंटरनेट पे भी आप today's weather देख लेते हो, है ना, कि हमने आज घूमने जाना है तो बारिश तो नहीं होगी, है ना, फिर हम उसी हिसाब से अरेंजमेंट करके जाएं. ठीक है, अगर न्यूज में देखते हैं तो वहां पे भी टुडेज वेदर कंडीशन दिखाते हैं फॉर डिफरेंट सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज की, है ना, दैट आल्सो दे आर शोइंग. सो व्हाट इन वेदर कंडीशन में होता क्या बताते हैं वो, व्हाट दे टेल अस अबाउट वेदर कंडीशन, व्हाट विल बी द टेम्परेचर, वेदर इट विल बी रेनफॉल, वेदर इट बी क्लाउडी. ठीक है, दे टेल्स अबाउट दैट. ठीक है, टेम्परेचर बताते हैं, temperature, then rainfall, stormy, whether it will be stormy or not. तो ये सारी वेदर कंडीशंस बताते हैं. तो वेदर कंडीशंस ये हमें किस टाइम की बताते हैं? वेदर कंडीशंस when we see these weather conditions, they are about day to day, hour to hour. We can see the weather of morning and weather of night. ठीक है, today you can search on the Google today's weather, you can see hour wise what is the temperature at 3 p.m, 2 p.m, then 4, 5, 6 hour wise. ठीक है, so weather is hour to hour and day to day. ठीक है, hour to hour and day to day weather phenomena, day to day conditions in atmosphere. Conditions कैसे? Maybe the day is hot, the day is how much humidity is there. ठीक है, whether the day is pleasant, whether the day is rainy. So whatever the condition is there, day to day or hour to hour conditions of the atmosphere. वैसे तो weather और climate दोनों ही conditions हैं atmosphere की. Climate is also condition of atmosphere and weather is also. ठीक है, but difference क्या है? weather का तो हमने discuss कर लिया ना कि it is related to day and hour to hour. And climate क्या है? It is average weather condition. ठीक है, जब हम जैसे हम 1 year का भी एवरेज निकाल सकते हैं कि पूरे 1 year में कैसे रही, मोस्टली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, मंथ वाइज भी हम निकाल सकते हैं, डिफरेंट समर सीजन हम निकालेंगे, दिस इज समर सीजन, दिस इज विंटर सीजन, तो वो हमने एवरेज निकाली हुई है ना. हम एक दिन का तो नहीं बता रहे ना कि टुडे इज रेनी डे, टुमारो इज दिस, नो, एवरेज कि these months they are summer season, these months they are rainy season, these months winter, autumn. ठीक है, such like. So climate means average weather conditions of a place for longer time. किसी भी प्लेस की, ये थी किसी भी प्लेस की hour to day, day to day, hour to hour, day to day. ठीक है, और climate average weather conditions for long period of time. So that represents the climate of a place. ठीक है, weather and climate difference is clear to everyone. ठीक है, so in this climate what we discuss, इस climate में हम क्या-क्या, इस weather में हम क्या-क्या देखते हैं? टेम्परेचर देखते हैं, है ना, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं. जब भी अगर आप टुडेज वेदर देखोगे भी, वहां पे आपको हर चीज दिखेगी. व्हाट इज द ह्यूमिडिटी इन द मॉर्निंग,
what was humidity in the evening, rainfall, if there is no then 0% होगी, है ना, then temperature it will be shown, so wind speed also it will be shown. तो ये सारी चीजें क्या है, वेदर से रिलेटेड. सो इसमें से हम टेम्परेचर पे अभी फोकस करते हैं. सो टेम्परेचर दैट यू फील एवरी डे इन एटमॉस्फेयर, वी आर फीलिंग हॉट, वी आर फीलिंग कोल्ड, ठीक है, दैट इज ऑल ड्यू टू दिस टेम्परेचर. सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में डिग्री है ऑफ हॉटनेस, जैसे ये हॉटनेस की डिग्री होगी, ये कोल्डनेस की डिग्री होगी, ठीक है. डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कैन यू वेट फॉर 10 minutes? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन आवर एटमॉस्फेयर, दैट इज टेम्परेचर, ठीक है. टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, जैसे हमने यहाँ पे वेदर की, तो ये डे और नाइट में नहीं बल्कि R to R भी चेंज हो सकता है ना. सो दिस टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, ठीक है. एक सीजन में टेम्परेचर कुछ और था, नेक्स्ट सीजन में कुछ और हो गया, ठीक है. समर सीजन में ज्यादा था, विंटर सीजन में कम हो गया, डे टू डे भी चेंज कर रहा है. डे नाइट में अगर आप चेक करोगे तो देखोगे डे में टेम्परेचर ज्यादा है, नाइट में कम, ठीक है. इसी तरह सीजन टू सीजन भी डिफरेंट करता है. और ज्यादा टेम्परेचर हो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, हॉट और कोल्ड, hot. So summers are hot and winters are cold. Temperature is more in summer and less in winters. ठीक है? So this is an important factor in this temperature. ये temperature में जो important factor है that is insolation, that distribution of temperature. पूरी अर्थ पे temperature एक जैसा नहीं है, ठीक है. तो इसके लिए factor responsible क्या है, insolation. ठीक है. व्हाट इज इंसोलेशन? इंसोलेशन दैट इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी, ठीक है. जो सोलर एनर्जी आ रही है, ठीक है, सन से, जो भी, ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया होगा, डायरेक्ट सन रेज जहां पे पड़ती है देयर इज मोर हॉट, ठीक है. जहां पे प्लांटिंग है वहां पे दे आर कोल्डर एरियाज सच एज पोलर एरियाज, है ना. पोलर एरियाज तो कोल्डर होते हैं. अगर यहाँ पे हुई तो यहाँ पे ज्यादा हीट होगी, यहाँ पे भी अगर डायरेक्ट सन रेज गई तो यहाँ पे ज्यादा हीट होगी, अगर यहाँ पे डायरेक्ट गई तो यहाँ पे ज्यादा हीट होगी. मेनली बिटवीन द ट्रॉपिक एरियाज, दीज नियर द इक्वेटर एरियाज. यहाँ पे अगर इक्वेटर है तो ये एरियाज पे, ट्रॉपिक एरियाज में हॉट एरियाज होंगे, ठीक है. यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा. तो इंसोलेशन क्या है, दिस इज इनकमिंग ऑफ द सोलर एनर्जी दैट इज इंटरसेप्टेड बाय अर्थ. जो अर्थ क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है. क्योंकि वो आगे तो जा नहीं रही, अर्थ के बीच में एब्जॉर्ब हो रही है सारी गर्मी, है ना. सो दिस इज द इनकमिंग ऑफ सोलर एनर्जी. सो नाउ दिस अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. इक्वेटर पे ज्यादा है इंसोलेशन और कम कहाँ पे है इंसोलेशन, पोलर एरियाज में, ठीक है. पोलर एरियाज में इंसोलेशन कम है एंड मोर इंसोलेशन इज नियर इक्वेटर. Therefore, the temperature decreases in the same manner. So, ज़्यादा temperature, where it will be the more temperature near the equator or near the poles? Where will be more temperature? Near the equator or near the poles? Near the equator. Why? Because there is more solar insolation. ठीक है? More solar insolation is near the equator. And then temperature in cities is much higher than that of villages. ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है cities में ज्यादा होता है, villages में कम होता है. कंक्रीट मेटल बिल्डिंग्स हैं क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, cities में. एंड देन हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और जो दिन को एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि whatever heat is absorbed during the day that is released in the night, that we have discussed in greenhouse effect also. ठीक है, that our earth is having normal temperature due to this blanket of air. So this heat is released during the night and the crowded high rise buildings of cities, अगर बहुत ज्यादा crowded है तो वहां पे heat भी ज्यादा होगी. विलेजेस में ओपन एरियाज है तो जहाँ हीट भी
ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़े कोल्डर एरियाज होते हैं. सो दैट इज व्हाई देयर इज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज. तो सिटीज में टेम्परेचर कैसा होता है, ज्यादा. सो इट इज क्लियर. इंसोलेशन, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, हाँ जी, व्हाट इज टेम्परेचर, हाँ जी, व्हाट इज टेम्परेचर. Yes, the hot or cold that we feel in our atmosphere, that is temperature. The degree, we can say the degree of coldness or hotness, or the hot or cold that we feel in our atmosphere, that is temperature. What is insolation? Yes, the rays of the sun intercepted by the earth. Intercepted means that are absorbed by the earth. ठीक है? And that insolation, if it is more, then if sun rays are directly, insolation will be more. If sun rays are slanting, then insolation will be less. ठीक है? So this is about the structure of the atmosphere, then difference of the weather and climate, then the temperature. So then we will discuss about the air pressure and wind. Okay. So what is air pressure? All of you know that you may have done experiment also in science that air is having pressure. Okay. That air above us presses us. कि जो भी हमारे आसपास air है, हमें ये तो पता है कि air is having weight. Air का weight होता है. ठीक है. And it is also having pressure on us. कि हम पे pressure भी डाल रही है. Air is also pressing us with a great force on our bodies. जैसे मून पे तो एयर का प्रेशर बिल्कुल होता ही नहीं है. So that's why they are wearing the suits. ठीक है, जब when they are going to the moon. So in यहाँ पे on earth the air surrounds us, that is exerting pressure on us. वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है. Although we are not feeling. Feel हमें कब होता है, जब when there is a large storm, जब heavy storm होती है, बहुत तेज हवाएं चलती है, then we feel. Yes, बहुत तेज हवा आ रही है and it is exerting pressure on us, है ना, तब हमें फील होता है. अदरवाइज नॉर्मल हमें फील नहीं होता है. बट इट इज देयर, एयर प्रेशर इज देयर. ठीक है, although we are not feeling. And why? This is because the air presses us from all direction. क्योंकि एयर एक साइड से नहीं आ रही. जब स्टॉर्म चलते हैं तो एयर एक ही साइड से आती है, फिर हमें फील होता है. अभी क्या है, अभी एयर का प्रेशर सभी साइड से है, तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट feeling it. And our body exerts a counter pressure. ठीक है, जैसे बाहर से आ रहा है तो हमारी बॉडी भी थोड़ा सा प्रेशर करके, तो there is balance, तो इसलिए हमें ज्यादा फील नहीं हो रहा. What is air pressure? उसकी डेफिनेशन क्या है एयर प्रेशर की? Air pressure is defined as the pressure exerted by weight of air on earth surface. जो एयर का वेट है वो जो अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेशर डाल रही है, दैट इज एयर प्रेशर. ठीक है, एयर प्रेशर क्या है, व्हाट इज एयर प्रेशर? ये जो हमारी एयर है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, दिस एयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर. ठीक है, exerted by this weight. So this air is having weight. So the pressure exerted by the weight of air on the surface of earth. जो ये एयर हमारी सरफेस के ऊपर, हमने कहा कि वेदर फिनोमिना सारे किसमें होते हैं, ट्रोपोस्फेयर. तो प्रेशर भी ज्यादा कहाँ पे होगा, ट्रोपोस्फेयर में. ठीक है, सो द एयर प्रेशर, द वेट ऑफ एयर, इट इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सो दैट इज कॉल्ड एयर प्रेशर. ठीक है, एंड एज वी गो अप, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, देन इन द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ऊपर वाली लेयर्स में जाते जाएंगे, then pressure will be falling rapidly. तो ज्यादा प्रेशर कहाँ पे है, ट्रोपोस्फेयर में. So as we will go higher, then this pressure, it will decreases rapidly. Then the air pressure is highest at sea level. अगर sea level होगा तो वहां पे air pressure क्या होगा, highest होगा. और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे वहां पे कम. ठीक है, सी लेवल से हम मेजर करते हैं, क्योंकि जो भी हमारी पूरी अर्थ में जो भी सी लेवल है एक जैसा है.
ठीक है। उस सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे प्रेशर कम होगा। ज्यादा कहाँ पे होगा? सी लेवल। क्लियर? हाँ जी बेटा, ठीक है। देन horizontally the distribution of air pressure is influenced by temperature of air. अगर हम horizontally बात करें, ठीक है, horizontally जो एयर का प्रेशर है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। अब वहां का टेम्परेचर कैसा है उससे भी डिपेंड करता है कि वहां का टेम्परेचर हॉट है कि कोल्ड है, वैसा ही एयर का प्रेशर भी होगा, ठीक है। अगर एयर लाइट एयर कौन सी होती है, हॉट के कोल्ड, विच एयर विल बी लाइट? एयर, hot air will be light in weight or cold air will be light in weight? Which air will be light in weight? Hot air will be light in weight, ठीक है। So the air pressure is highest at sea level. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहां पे एयर प्रेशर कम होता है. So it is also influenced by the temperature. In areas where the temperature is high, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हॉट है, वहां पे क्या होगा, एयर अगर एयर क्या है, अगर एयर लाइट होगी, टेम्परेचर ज्यादा है, एयर गेट्स हॉट एंड इट राइजेस अबव. इफ एयर इज कोल्ड, एयर विल बी डाउन एंड हॉट एयर विल बी अप, ठीक है। तो इससे क्या होता है, गेट्स हीटेड एंड राइजेस, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया. अब यहाँ पे बहुत, क्योंकि टाइम टू टाइम सीजन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंजेस, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, सन इंसोलेशन मोर हो गई, एयर गेट्स हॉट, इट ग्रो अप, तो वहां पे थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग. तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया. तो उस टाइम के लिए वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया एंड दैट लो प्रेशर इज ऑल्सो एसोसिएटेड. फिर उस टाइम उसी साइड पे क्लाउड्स वगैरह, तो एयर इज मूविंग, एयर भी एक जगह स्टिल नहीं है, एयर इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. अब वहां पे लो प्रेशर एरिया हो गया जहां पे हॉट ज्यादा हुई, तो हाई प्रेशर एरिया जहां पे कोल्ड वेदर थी, वहां से एयर किधर को मूव होना शुरू हो जाएंगी, लो प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है. सो एरियाज हैविंग लोअर प्रेशर, लोअर टेम्परेचर, जहां पे कम टेम्परेचर था वहां पे एयर कैसी थी, वहां पे एयर कैसी थी, कोल्ड थी, प्रेशर वाज मोर, मतलब देयर वाज हाई प्रेशर एरिया. और जहां पे हीट थी वहां पे कैसा प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया. क्यों? क्योंकि एयर ऊपर चली गई तो लो प्रेशर हो गया, ठीक है. देन द हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया. हैवी एयर जहां पे कोल्ड एरिया वहां पे हाई, जहां पे हॉट एरियाज वहां पे लो प्रेशर, ठीक है. सो इट मींस एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. क्योंकि लो प्रेशर एरिया में, जैसे आप एसी रूम में बैठे हो, एसी का दरवाजा खोलोगे, एसी तो बहुत ठंडी हवा थी, तो दरवाजा खोलते क्या हो जाएगा, क्यों, कोल्ड एयर, हाई प्रेशर एरिया था कमरे में, जैसे ही खोला बाहर लो प्रेशर एरिया था, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, बाहर चली गई, बिकॉज बाहर तो टेम्परेचर कम था, लो प्रेशर एरिया था. सो एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज. क्लियर? वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, ठीक है. रीड थॉरली. ओके देन. हाँ जी आकृति, हाँ जी आकृति. यस बेटा. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, at which layer the aeroplane fly? Which layer? Please. The aeroplane flies. Yes, aeroplane fly in this stratosphere because it is free from weather phenomena. Next to stratosphere, हमारे ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, वहां पे वेदर फिनोमिना नहीं है, क्लाउड्स नहीं है, ठीक है. तो वो यहीं पे फ्लाई करेंगे, इतनी दूर नहीं जाएंगे फ्लाई करने के लिए, ठीक है. ओके, एनी अदर डाउट? Thank you. No, ma'am. थैंक यू बेटा. Welcome, ma'am.